ہمیں دعا کیسی کرنی چاہیے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، رواج بہت کام ہے، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس کے اندر مقدس یعقوب جو ہے اپنے خط کے اندر بیان کرتے ہیں کلیسیا کو لکھتے ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ سوال یہ ہے، بات یہ ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعا، اب دعا جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے دعا، ایک لفظ ہوتا ہے دعا، یعنی وہ ایسا دال وا الف، یہ ہوتی ہے دال این الف آ، دعا۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے بات چیت کرنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے بات چیت کرنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی حمد کرنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے التجا کرنا، دعا سے مطلب ہوتا ہے خدا سے اپنے دل کی باتوں کو بیان کرنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے ساتھ اپنی راگنی جوڑنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے ساتھ اپنے دکھ بانٹنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی حضوری مانگنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی حضوری میں آنا اور اپنے گھٹنوں کو، اپنے سر کو، اپنے من کو، اپنے جی کو، اپنی خواہشوں کو اور ایسے فنش کرنا اور اس کی حضوری میں جھکانا۔ اور پھر دعا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکنا اور ہر ایک خواہش اس کی حضوری میں رکھنی، جو قادر مطلق ہے، جو جانوں کا لنگر ہے، جو شاہ انبیاء ہے، جو کائنات کا ادونائی ہے، جو حاکم کل ہے، جو طبیب اعظم ہے، جو شاہ انبیاء ہے، جو ہماری دعاؤں کو سن کر جواب دینے پر قادر ہے۔ آمین، اونچی بولو آمین۔ تو بائبل کے اندر آج ہم سیکھیں گے، بائبل مقدس کے اندر 4 طریقے دعا کے، کہ ہمیں دعا کیسی کرنے چاہیے۔ کیا وہی دعا اجی دعا پہنتے تھے ہمارے باپ پڑھنے تھے، کئی سپیڈ لائی ہوتی، اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، لائی ہوتی نا سپیڈ، وہ میرے نام بھی اگے ہوندے آپ باتیں چ پہنچے ہوتے تو آتے نے تیری بات صحیح ہے۔ بائبل میں لکھا ہے دعا کے رولز ہیں، دعا کے طریقے ہیں، دعا کے قواعد و ضوابط ہے، دعا کا ڈسپلن بائبل مقدس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور بائبل کے اندر پہلی جو بات یہ ہے، سر توجہ کرنا، پہلے جو ہم سیکھیں گے وہ کون سی دعا ہے۔ لیکن دعا سے پہلے خدا سے ڈرنا اور روح سے بھرنا ضرور ہے۔ جب ہم دعا کریں، جب خدا کے سنی میں آئے، ہمیں سب سے پہلے خدا سے ڈرنا ضرور ہے، پھر ہمیں روح سے بھرنا ضرور ہے۔ جب ہم دعا کریں، پالوس رسول کہتے ہیں میں عقل سے بھی کہوں گا اور اونچی بولو، عقل سے بھی کہوں گا اور، لیکن روح والی کون سی دعا ہے یار؟ عقل والی تو سمجھ میں آتی ہے، موٹر سائیکل دے دے، گدی دے دے، قسطیں دینی، پیسے دے دی، بہت نہ ہونا لی، موٹر سائیکل دی قسط دینی اور یہ گھر کی قسط دینی، پیسے دے دے، مجھے راشن کے لیے پیسے دے دے، مجھے کپڑوں کے لیے پیسے دے دے، مجھے گھر کے رینٹ کے لیے پیسے، یہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن روح والی کون سی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور، بولے تو ساری در میرا لگا، جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ اس کا مطلب ہے خدا روح ہے، وہ چاہتا ہے ہم روح میں بڑھے، ہم روح میں دعا کریں، ہم روح میں خدا کی حضوری میں جائیں۔ کیونکہ کتنے لوگ میرے خیال سبھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ بائبل لائی یا نہیں؟ ہاں، بائبل میں لکھا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، دعا سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے ہمیں خدا کا خوف کرنا ضروری ہے، ہمیں ڈر ضروری ہے۔ ڈر سے مطلب جب ہم اس کا ڈر مانیں گے اور جب ہم اس کو خدا مانیں گے پھر ہماری دعائیں سنی جائے گی۔ آمین، سب بولو آمین۔ اعمال کی کتاب 10ویں باب کے اندر پہلی 2 آیات مقدسہ کے اندر لکھا ہے، اعمال اس کا ایسے 10 باب 2 آیت، وہاں ایک شخص ہے
उसका नाम कर्नेलियस है। ये रोमी पलटन का ऐसा है कि एक बड़ा अजीम रहनुमा है, ये रिच मैन है, बड़ा अमीर है, इसके पास पैसा भी है, दौलत भी है, सोना भी है, चांदी भी है, कौर भी है, डब्बा भी है, नौकर भी है, चौकर भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, लेकिन ये खुदा से डरता है। आमीन। पैसा भी है, पैसा भी, इज्जत भी है, खाना भी दोपहर को भी अच्छा खाता, शाम को भी अच्छा खाता, रात को भी अच्छा खाता, सुबह को भी अच्छा खाता, नाश्ता भी अच्छा करा। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो कर्नेलियस वो खुदा से डरता था, खुदा से। और एक और बात जो है उसने खुदा से भी डरता था, और बाइबल में लिखा है और वो दुआ में लगातार रहता था। आमीन। आप कितनी बारी रोटी खाने हैं? चलो जी एक बाद गया काम कितनी दफा, चलो कोई बात नहीं, कई बार 4 दफा भी खा लेती है। दुआ कितनी बारी करनी? एक बारी है 2 दफा। कितने लोग जड़े 2 दफा करते हैं? जेड़े 3 दफा करते हो चुका, जेड़े 3 बारी रोटी खाते हो चुका, कोई है? बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता। कर्नेलियस, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इमाल उसके ऐसे है 10 बाब, इमाल उसके ऐसे है 10 बाब के अंदर लिखा है कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, उस पलटन का सूबेदार था जो अतलियानी कहलाती है, वो दीनदार था। हालेलुया। क्या था? क्या था? कुछ बोलो। तुसी दीनदार नहीं? मैं तो दीनदार, तुसी हाँ दीनदार नहीं? वो फिर रहते आता क्या कौन बोलियो नहीं बोल दियो दीनदार हो? मैं भी दीनदार का मतलब पक्का दीन वाला। आमीन। बाइबल में लिखा है और वो दीनदार था और अपने सारे घराने इसमें किससे आनी एक कदा मुंह है नु ते कदा चढ़दे नु ते कदा लेंदे नु ते कदा मशक नु ते कदा मगर मनु है। बाइबल लिखा है वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। पैसा भी है लेकिन उसको पता दुआ मेरी तब कबूल होगी जब मैं खुदा से डरूंगा, जब मैं खुदा का खौफ मानूंगा। और आगे लिखा और यहूदियों को बहुत खैरात देता, हर वक्त खुदा से दुआ करता था। हालेलुया। कब? उन्हें 4 वाला भी कम आता है, 5 वाला और हर वक्त। अगर वो पहाड़ों को देखता वो कहता खुदावन तेरा शुक्र है। अगर वो किसी ऐसे दरख्त को देखता तो उसका खौफ मानता, कहता खुदावन तेरा शुक्र है तो इससे कितना ब्यूटीफुल बनाया। अगर वो किसी परिंदे को देखता वो उसकी तारीफ करता, क्योंकि ये डर है। क्योंकि अगर आप बाइबल मुकद्दस बताती है कि लिखा वो हर वक्त दुआ करता, तगड़ी गल सुन लो वो खैरात भी देता सी। दुआ उन्हें पता है दुआ सुक्की दुआ, रोटी जितनी मर्जी तुसी सोहनी बना लो, तंदूर दी बना लो, घर वाले सालन ना दो, सरी छापा तो रोटी भला कितने जाएगी? चुल्हे देखो जाएगी या नहीं जाएगी? सुखी रोटी दे दो, सालन ना दो तो की होएगा? यहाँ ते 2-4 गाला सुनोगे या फिर बेइज्जती तो होनी। लेकिन बाइबल में लिखा था दुआ भी करता था, डरता भी था और खैरात भी देता था। ये था उसका कुलिया, दुआ करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो ये सब काम करता था फिर फरिश्ता कर उससे कहता है कर्नेलियस खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई है। जोर की तारीफ मारो। लिखा और सिखा खौफ ना कर, क्योंकि तेरा कुलिया ठीक है, तेरा तरीका ठीक है, तेरा रास्ता ठीक है। दुआ करने का तरीका है सिंपल। दुआ पढ़ी और पूरे साल पढ़ी हो, जो बरकत आ गई थी ताता के, कुलिया ही नहीं है, तरीका नहीं है। आप किसी के घर में जाते ही इंजे गेट में ठुडा मारो बाहर निकल, वो आकर कहेगा यार तेरी तमीज होनी चाहिए, कहेगा या नहीं? अगर आप सुकून के साथ कहेंगे हेलो भाई यार तो जी साहब, ऐसे हो गया ना। बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है तरीका है दुआ का। और फिर इसके बाद क्या था? रूह से डरना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा जब सामने औरत को यीशु मसीह कलाम सुना देगा, कहा खुदा रूह है। खुदा क्या है?
تو پھر وہ جسمانی دعا کو نہیں جو چاہتا روح والی چاہتا ہے جہو جی آپ اوہو جے میں یار انٹرنیٹ تے جانا بولو آخر میں دیا جہو جے آپ اوہو جے ساکھ جہو جے آپ اچھی بولو یار بندے ہو اچھی بولو ایلڈر صاحب اچھی بولو جہو جے آپ اوہو جے سارا ساکھ کون ہے یسوع مسیح وہ روح ہے وہ چاہتا وہ روح والی دعا کرے آنی میں اے ہمارے باپ تو جسمان ہو گئے خدا بھی اندر فرشتوں اندر پچھو اٹھی ماری ہے لکھ چھے کیونکہ لکھا ہے بائبل بتاتی بائبل کے اندر لکھا خدا روح بولو صحیح خدا روح ہے وہ چاہتا ہے خدا روح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم روح میں ہو تم روح میں دعا کرو اور روح میں کیا ہے سوچے خیال ارادے فکرے سب چھوڑ کر اس کی حضوری میں آنا اور صرف روح سے اس کے حضوری میں آنا پالوس رسول کیا تھا جو روح میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے آمین آمین آگے دوسری بات یہ ہے بغیر غصہ اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا میں یہی کہتا ہوں آپ جب بھی دعا کریں آپ اپنے گھروں میں کریں آپ مسجد ایسے کریں آپ ایسے چرچز میں کریں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے کریں آمین ہاتھوں کو اٹھانا فردہ مندی کی علامت ہے اسی دعا کے اندر ایک کلیہ ہے جب آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے آپ کی دعا مکروہ ہے میری گل سنی میں کیا آپ کی دعا آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے آپ صرف کھانا پوری کر رہے ہیں پیپرہ چاہتا سے کھانا پوری خالی جگہ پوری کرے ہیں تو جے صحیح پر ہوگی تو نمبر تو جے نام تو پھر ایسا ہوگا نا لیکن بائبل میں لکھا ہے بغیر غصہ اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا آپ کو پتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا اور بائبل کے اندر بڑی خاص بات لکھی ہے تیموتھیوس کے خط کے اندر تیموتھیوس کے اندر مقدس پالوس رسول بیان کرتے کہ ہم نے دعا کیسی کرنی آمین سب بولو آمین سب بولو آمین ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ایک کون سی دعا کرنی ہاتھوں کو اگر آپ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتے آپ کی دعا کیا ہے آپ نہیں پوری دعا نہیں کرتی پھر آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا اور تو ایسا ہے دوسرا تیموتھیوس اور ایسا ہے سوری پہلا تیموتھیوس 2:8 آئی بس میں چاہتا ہوں مرد ہر جگہ بغیر غصہ ہر جگہ بغیر منہ تے چویلی بچے ہونے چاہیے جب دعا کرو مسکراندے ہو ہاللیلویہ ہاللیلویہ منہ دے وکھرے سٹائل بدل نہیں پھر خدا نہیں پتہ لگ جاتا ہے کام ٹھیک ہے نہیں بائبل لکھا میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ بغیر ہاتھ سے کہ دعا کرنی کہہ رہے خوش حال ہوگی انہی حضوری خوش ہو کہہ رہا لیکن بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے کیا کرے اور پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اور پھر کہ عورتوں نے ملے کیا بات یہ تسی بھی سن لو اسی طرح عورتیں حیات اور لباس سے شرم پرہیزگاری کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ پرہیزگاری کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ایک تو تک بازو نہ کٹے ہوں میری بھی بیوی بیچی بیٹھی تسی میری پہنا جو ایک تو تک کٹ نہ پئی ہونی پوائنٹ کٹ بھائی میرا کام ہے بھائی سنانا میں نہیں ڈنڈے کھانے باز اگوں پاؤ نہ پاؤ ڈیڈی مرضی کار جو ہوگی مرضی پاؤ پر شہد سے نہیں ہے بھائی پاؤ کار جو ہوگی مرضی مرد ہر جگہ بغیر غصہ ہاللیلویہ بغیر ادا کر دعا کرو تو تیرے دل کو بخش نہیں ہونا چاہیے بائبل میں لکھا ہے اور پھر بائبل مقدس بتاتی جب بنی اسرائیل اور جب ایسا یشوع جب لوگوں کے ساتھ امالیکیوں سے لڑ رہا تھا تاریخ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ نے اور ہارون نے کہا یشوع سے کہا تم جنگ کے لیے جاؤ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کری کرنے بھی اسی سارے نوکریاں کرنے ہیں تو اسی ساڑھے لی 5 جب ایک روزہ تو رکھے کدی آکھیا کسی نے کدی بھی آکھیا پر صاحب ایک ساڑھے لی روزہ رکھے ساڑھی پہ آکھیا کبھی یا پر صاحب آج تسی ساڑھے لی ہاتھ اٹھونے آکھیا وہ جدے سن لو پادی دی دعائی لمبی جدے سن لو پادی دی دعائی پادی ٹھیکے دارے دعا تو اس کی ہے ہاللیلویہ کبھی یہ کہا ہے میں خادم میرا دوست ہے بڑا عظیم خادم ہے بس یہ کہتا ہوں یار
प्लीज प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। मैं कहता हूँ आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्रे करें। कभी आपने ये कहा है एक रोजा साढ़े लिए रखियो? कभी पूछा आप 8 दिन आप पूछना भावे पादी का एक्सीडेंट हो जाए, भावे पादी को बुखार चढ़ जाए, कभी ये रास्ते दी अपनी फैमिली को? मूसा और हारून ने कहा तुम यीशु को कहा तुम जंग के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ पे होरब पे जाता हूँ और होरब के ऊपर जाकर मैंने करना क्या, मैंने दुआ करनी है और मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। और जैसे ही और मूसा हाथ उठाता था और लोग जंग जीत जाते थे। इसका मतलब हाथों को ऐसे, हालेलुया, कैसे बोलो तो सही। हाँ उठा के तब कैमरे पर मार, क्या हाँ शाबाश एन मारो इधर उधर हाथ उठा के। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है और जब एक वक्त है मूसा थक गया, सारी गल बंदा से ना इंसान मूसा थक गया मूसा दे हाथ इथों होंगे जिवें किते मोटे बंदे दे मेरे रंगे दे या भाई आसफ रंगे दे हाथ थक ही जाते हैं। बस हाथ थक जो थक मूसा बह गया। जो मूसा बह गया यहोशू ने कहा जो जंग लड़ रहे थे वो भी अक्लमंद थे और वो भी रूह से भरे हुए थे। आमीन। और 6 परौठे खा के नहीं सी आए हुए जिन्होंने पासी आ जांदियां सी, लेकिन नहीं बाइबल लिखा वो भी जो जंग करने गए थे वो भी अक्लमंद और रूह से भरे हुए थे। और बाइबल में लिखा है अच्छा बोले कहा भी जंग हंसी हर दे। एक बंदे ने क्या हेलो, अगले ने क्या सारा समझ कोट बोल सी उनके लगदा मूसा दे हाथ है, उन्हें क्या हाँ एक एल्डर बचा गया और क्या वाकई मूसा दे हाथ ले। और उन्होंने 2 बंदे खड़े किए, एक हारून को और एक और बंदा था। उन्होंने एक पत्थर दिया और पत्थर के ऊपर मूसा बैठ के और एक ने इधर से हैंड पकड़ा एक ने इधर से हैंड पकड़ा। हाथ किसके थे? मूसा के। तो हाथ उठाना कुलिया था, हाथ उठाना कानून था। और जब हाथ उठाए और लोग जीत जाते। ताली जोर दी मारो खुदा दी जला। हाथ बगैर गुस्सा तकरार नहीं फिर करनी, पर बगैर गुस्सा दे नाल हाथ उठा ले। आमीन आमीन। फिर आगे है सतोचो करना, आगे है दुआ करने से पहले अपने कसूर वालों को माफ करो। लड़े हैं तो ना इंजिक सुलह कर लो, उन्होंने सीधा माफ किया तुसी सानू माफ कर दो। बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है तब हमारी दुआ सोने पे सुहागा है। आमीन। तब हमारी दुआ सोने पे सुहागा है, क्योंकि लिखा है जब मत्ती की रसूल के इंजील 6 बारी में हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया तो हमारे तापा तो करते नहीं थे। सरा सारी नाले चोर नाले बोलो तो सही नाले चोर नाले अब नाले चोर नाले इज्जतर ना करने नहीं अगर माफ करिए। खुदा कहता नो 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 नो। रिकॉर्डिंग होती है आपकी प्रेयर की, आपकी दुआ की, आपके बोलों की, आपके चलने की रिकॉर्डिंग होती। अगर हम आकाशवाणी की किताब का मुतालिया करें 11वें बाब के अंदर लिखा है और यूहन्ना रसूल कहते हैं जनाबे आला मुझे एक आसा दिया गया और आसा ये था उसका इसकी दुआ भी नाप, इसके रोसे भी नाप, इसके शहर दुआ वाली जगह भी नाप, इसके हदिये भी नाप, इसके चर्च भी नाप और इसके फैमिली को नाप, इसकी तमाम शुक्र गुजारियों को नाप और मेरी हजूरी मिला। क्या ठीक है या गलत? बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मरकज से सुन के जी उसका शहर कह रहा हमारे तू जो तेरा नाम पाक माना ते तेरी आपा ने तेरी बात तेरे थले है आपा असी आने तो है हाँ पर असी दी बात से पूरी जिस दिन दी बात से सारी लाइफ पूरी होगी पर समाना रिश्तेदार जानन दे इन्हें बात से नहीं मंगया। आमीन। क्या लिखा है मरकज रसूल के इंजील 11वां बाब 25 आयत। बस जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ ना करे। ऐसा सच्ची गल जो मैं अपने कोलों नहीं जो पढ़ी घर जाके पढ़ लो। जब तक असी माफ नहीं करांगे साडी माफी फिर खुदा साडियां दुआवां नहीं सुनेगा। आमीन।
क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि हम उसके दायरे से बाहर निकल गए, हम उसके दायरे से आउट हो गए। क्योंकि लिखा है जब कभी तुम खड़े होते हो, कहते हो ऐ हमारे, बोलो तो सही, ऐ हमारे बाप। बाप किसे कहते हैं? जो हमारा सारा अख्तियार रखता हो, जिससे हम डरते हो। डरे भी इसलिए खुदा कहता है अगर मुझे आका कहते हो तो मेरा एहतराम कहाँ है, अगर मुझे बाप कहते हो मेरा डर कहाँ है। तुम झूठ बोलते हो, लेकिन जरूरत है कि जब हम माफ नहीं करेंगे हमारे कसूर माफ नहीं होंगे। क्योंकि लिखा है मुकद्दस याकूब कहते हैं जब तुम खड़े होते हुए ये कहते हो कि अगर तुम्हें किसी शिकायत हो तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। आगे लिखा एलिया हमारा हमत भी इंसान था। एलिया दिया 4 लत्ता नहीं सी, 6 अखा नहीं सी, 6 कान नहीं सी, लेकिन क्यों वो दायरे में रहा। जो खुदा ने कानून दिया, जो आइन दिया, जो अकवाब और सवाबत दिया, उसमें रहकर उससे दुआ की। देखा उसने अपना मुंह आसमान की जानब उठाया, उठाने के बाद उसे क्या कहा? आसमान बंद। साढ़े को एक बंदा भी जड़ा ना वो नहीं रोकदा, रोकदा या नहीं? मिसाल दे गुस्सा कर मैं दी 18,000 किश्त देना ए बैंक दी, ए चर्च जितू से बैठे हो ना, कभी हवा करके कभी किश्त वाला बंदा नहीं रुकया भी कल नू आई दुआ करके, वो कहता हम पैसा लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ एलिया ने अपना हाथ वो उठाया, उठाने के बाद कहा ऐ आसमान मैं तुझे खुदा के नाम से धमात करता हूँ। और 3 साल बारिश ना, 3.5 साल बारिश, 3.5 साल लगेंगे, लेकिन बारिश है। लोग लबन लगे एलिया कहाँ है? बाइबल लिखा वो हमारा हम कभी ये इंसान था। क्या था यार? क्योंकि वो कानून में था, वो खुदा के आइन में था, वो क्योंकि वो कहता था जब वो खड़े होकर दुआ करता था मैंने सबको माफ किया। हालेलुया। लास्ट बात, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी दुआएं, हम दुआ पे दुआ पे दुआ पे दुआ पे दुआ, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्या आसमान बंद है हमारे लिए? क्यों? क्या स्वाब है? के लिए चाह रखा, हमारी क्यों नहीं ऐसा सुनी जाती? तवज्जो फरमा, हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती या उसका जवाब क्यों नहीं आता? कितनों को समझ आ रही? हाथ उठाए। कोई मेरे साथ पढ़ेगा? ऐसा कि यसाया पहला बाब फिर 29 पढ़ेंगे। यसाया 16 और 17 कोई पढ़ दीजिएगा। हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? हम दुआ पे दुआ पे दुआ पे दुआ पे करते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर इसका मतलब नहीं आपने दुआ बंद कर देनी है, आपने दुआ नहीं करनी, आपने ऐसे दुआ जो है उसको स्टॉप करना नहीं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं। दुआ भी करनी और दुआ का तरीका भी साथ करना है। आमीन। ऐसे है कि यसाया तो उसका पहला बाब उसकी लिखा है 16 और 17। अच्छा मैं पढ़ देता हूं अगर किसी ने नहीं निकाला। अपने आप को धो, अपने आप को बल्कि ऊपरी वाली आयत पढ़ांगे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, किसके लिए? दुआ के लिए। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। तुसी मेरे बुलाते रहो, मैं जो मुंह ही कर लेना, आप ही आप शर्मिंदे होके उठ जाना कि नबी बंदा सन मुंह बोलो तो सही, वो ना बोले हो वो सन मुंह खुदा फिर मैं भी आंख अपनी फेर लूंगा। क्या लिखा है? जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। और तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। लिखा बदफेली से पास आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालीब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की लिखा है फरियाद ऐसा रस्सी करो, बेवाओं के हामी हो। खुदा कहता पहले चेक करो अपने आप, पहले धो, पहले पाक हो। कितने लोग हैं जो संडे में आने से पहले 1-2 रोजा रख के आते? हाँ, संडे में आने से पहले 1-2 रोजा रख के आते नहीं। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये आपको फार्मूला है, आपको बोनस है, बोनस। कितने लोग हैं जो चर्च में जो प्रे करने से आज संडे है ना,
अगले संडे पाना ते एदे विच किन्ने लोग जिहड़ा रोजा रख के चर्च आउंदे मिट्टू तो रोज ही साडे घर परोठा खाना झूठ ना मारिया करे हाथ उठाओ कितने 2 तो 3 लोग बाइबल में लिखा है आप से तवज्जो फरमाना लिखा अपने आप को धो चेक करो तैयारी करके आओ चर्च में जिस दिन आप तैयारी करके आएंगे यकीन चलेगा बरकत गवांडिया नहीं होगी बरकत प्यादी होगी आमीन क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने आप को धो इसलिए ऐसे है कि इसी किताब और ऐसे उसका 29 बाब 13वीं आयत ऐसा है कि यशायाह की किताब 29 बाब 13वीं आयत में लिखा है बस खुदावंद फरमाता है क्योंकि ये लोग ज़बान से तो मेरी नजदीकी चाहते हैं और होठों से मेरी हालेलुया हालेलुया हाले चर्च निकले टुट पैने बीमारी पैने सप लड़ जाए ओदा बेड़ा गर्क हो जाए खानदान मर जाए वो बेड़ा गर्क हो जाए बाइबल में लिखा है क्योंकि ये लोग ज़बान से तो मेरी नजदीकी चाहते हैं और होठों से मेरी तासीब करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है दिल दूर हो तो दुआ पहुंचेगी उसे है वो बोलो तो सही दुआ पहुंचेगी बाइबल लिखा दिल हिले बास है बाइबल में लिखा दिल हिले दिल दी नहीं सुनी जिन्हें दिल दी सुनी उधर फंस गए हैं उधर है दिल दी नहीं सुनी दिल दी नहीं सुननी जिन्हें दिल दी सुनी फड़क गए हालेलुया मुझे गाली याद आई सी वरना सुनाऊंगी नहीं था क्योंकि मेरा खौफ उनको हुआ मैं फिर पढ़ूंगा और होठों से मेरी लिखा है तासीम करते लेकिन इनके दिल मुझसे क्योंकि वो मेरा तवज्जो फरमाना लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है क्योंकि मेरा खौफ हो उनको हुआ फक्त आदमियों की तज़ीम सुनने से कहते हैं मेरा खौफ सिर्फ उनको आदमियों की तज़ीम सुनने से हुआ मैंने जो बयान किया वो नहीं हो क्योंकि जब आप बाइबल मुक़द्दस की तालीम अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं फिर आप प्लस फॉलो होते हैं आमीन आपको बाइबल जानना भी जरूरी है बाइबल की तालीम को लेना जरूरी है क्या लिखा है खुदा के कलाम के अंदर और बाइबल मुक़द्दस हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर बताती है कहती है बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का ताकि तुम क्या पाओ शिफा पाओ आगे क्या लिखा है और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ रास्तबाज की दुआ कैसे से बहुत कुछ हो सकता है आपका परिवार बदल सकता आपकी प्रेयर से लेकिन शर्त ये है आप कम से कम 2 रोजे रखो ना एक फैमिली के नहीं रख लो रखो डॉक्टर सानू कहे ना तुसी 2 दिन रोटी नहीं खानी तो मैं ना मजाल नहीं जो घर वाली भी पका के दे दे ऐसा है या ना मरना ही डॉक्टर ने मना किया है ऐसा ही होगा ना डॉक्टर कहना कि तुसी चाह नहीं पीनी कईयों ने शुगर नहीं पीनी खबर है क्या डॉक्टर पास्टर है क्या डॉक्टर मौलाना है डॉक्टर क्या है वो तो एक डॉक्टर है ओनली लेकिन आप उसको पिक कर लेते हैं जो जिस्म की बीमारियां बताता है और जो रूह की बताता है उसकी नहीं माननी उसकी जिस्म का तो इलाज हो जाएगा तो जिहड़ा रूह दा होए वो कौन करेगा वो वही करेगा जिहड़ा रूह च होएगा आमीन वही करेगा जिहड़ा रूह से होएगा क्या कलाम खुदा के अंदर लिखा है बाइबल में लिखा है कि एक माचिस ना एक ही महीना कर लेंदे हो केड़ी भैन कर दी एक महीना कोई भी नहीं करती है लेटर होए लेटर है तवज्जो फरमाना ये बात बड़ी सीखने वाली एक लेटर से 1 महीना नहीं गुजरेगा एक माचिस हमें नई लेनी पड़ेगी या नहीं आपको अपलीस पर कब्जा पाने के लिए हर संडे वीक के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी नहीं तो आपका सत्यानाश कर देगा बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है आपको होमवर्क करना जरूरी है अगर आपका होमवर्क अच्छा नहीं होगा आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी आमीन क्योंकि होमवर्क है ही नहीं तो बच्चे अगर होमवर्क हमने नहीं किया बच्चे को होमवर्क करने के बगैर स्कूल में भेजते तो आप भी बिल्कुल सब जानते कोई गलबाती डंडे ही बने नहीं देखिए जब आपका होमवर्क दुआ बाइबल स्टडी आपका होमवर्क है जब तक आपका होमवर्क अच्छा नहीं होगा आपको स्टार नहीं मिलेगा आपको स्टार है जो स्टार आपको स्टार ये भी स्टार है ये भी स्टार है वो भी है आपको स्टार होमवर्क आपका अच्छा होगा तो फिर बाइबल के अंदर लिखा है फिर बाइबल कहे कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा
यीशु मसीह ने कहा ऐसी दुआ तुम करो, जो तुम मांगते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मालिक हो गया है, क्योंकि होमवर्क अच्छा है। जब तक होमवर्क अच्छा नहीं है, फिर डंडे, फिर कांटे और कीड़े। कई बार कई लिखाई होती है ना, एक के साथ तो कीड़ा रखा तो दूसरी का तो कीड़ा जाके चुकया। जी लिखाई अच्छी होती सी, उस पर नंबर भी मिलते थे। आमीन आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है, लेकिन बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया। पाक हाथों को उठाकर, पाक हाथ नवे तो नहीं अपने होने, वो दस्ती तो नहीं होने, को दस्ताने तो नहीं पाने, लेकिन मतलब यह है हमने इसकी जुड़ी में अपने आप को पाक करना है। ठीक है, वो रूह है, वो जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी हम करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।